کندکوٹ میں قومی شاہراہ پر دھند کے باعث ٹرک اور 2 مسافر بسوں میں تصادم، 6 افراد جاں بحق، 35 زخمی ہو گئے۔ گجرات میں ٹریفک حادثے کے دوران ایک ہی خاندان کے 3 افراد جان سے گئے۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں، پتوں کی میاں چنو، ملتان، خانیوال اور میاں والی میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ موٹر وے M4 گوجرا سے فیصل آباد تک بند کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے بھوانی شالی میں حساس اداروں اور پولیس کا چھاپہ، کالعدم تنظیم کے 3 دہشت گرد گرفتار، گولہ بارود برآمد۔ سندھ میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ساز طلب، اجلاس میں نئے کور کمانڈر اور DG رینجرز بھی شریک ہوں گے۔ کپتان اور باغی میں ٹھن گئی، عمران خان نے جاوید ہاشمی کو عقل سے فارغ بوڑھا قرار دے دیا۔ باغی کا بھی ایک کرارا جواب، کہا دونوں کا طبی معائنہ کرا لیا جائے، کس کا کیا کیا خراب ہے سب سامنے آ جائے گا۔ مسلم لیگ کاف نے نیا بلدیاتی آرڈیننس مسترد کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کو مکمل طور پر بے اختیار کر دیا گیا ہے۔ چودھری شجاعت کا کہنا ہے کہ گرینڈ الائنس کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ ہوشیار، خبردار، پاکستانی صارفین کے موبائل فون کا ڈیٹا غیر محفوظ ہو گیا۔ ویڈیو کالنگ کا ریکارڈ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے پاس پہنچنے لگا۔ حکومت کی صارفین کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ بھارتی جیل میں 4 سال سے پاکستانی ماں بیٹی کے قید ہونے کا انکشاف۔ حیدرآباد کی روبینہ دمے کا علاج کرانے گئی تھی، شوہر دلی چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خاتون کی شہریت کی تصدیق کرنے کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کو مشترکہ فوج اور تعلیمی نصاب بنانا چاہیے، امیر جماعت اسلامی کا کراچی میں ریلی سے خطاب۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کفن چوراں کا ٹولہ ہے، کشمیر کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھیں گے۔ گجرانوالہ ٹھیٹری سانسی میں زہریلی شراب پینے سے 4 افراد ہلاک، 2 کی حالت تشویشناک ہو گئی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طیبہ تشدد کیس نیا نیوز نے متاثرہ بچی کی والدہ کو ڈھونڈ نکالا۔ والد کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو چکا، DNA ٹیسٹ کے بعد کراچی بچی کو والدین کے حوالے کیا جائے گا۔ امریکی انتخابات میں روسی ہیکنگ کا معاملہ بے دخل، 35 روسی سفارتکار ماسکو روانہ ہو گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے روانگی کی تصدیق کر دی۔ اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کا امکان، نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز سے 4 T20 میچز کا پلان ہے، 2 لاہور اور 2 فلوریڈا میں کھیلے جائیں گے۔ السلام علیکم، نیو نیوز کے ساتھ میں ہوں شبی حسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سردیوں والے کپڑے اور سردیوں والا صابن بھی۔ یہ نہیں، یہ ہے سردیوں والا صابن لائف بوائے کیئر۔ یہ دے سردی زکام جیسے 10 انفیکشن والے جراثیم سے حفاظت، اور اسکن کے لیے موئسچرائزرز بھی۔ سردیوں والا لائف بوائے کیئر۔ بڑی کفایتی شاپنگ کرتی ہیں بالکل، کفایت کی چیمپئن ہوں۔ تو پھر ہاپے چھوٹو تو لیا ہی ہوگا۔ چھوٹو کیوں؟ تیزاب ہے نا۔ تیزاب پتلا ہے، اس لیے 10 گنا زیادہ بہ جاتا ہے، پر گاڑے ہاپے چھوٹو کا ایک چکر دے مکمل صفائی۔ ہاپے چھوٹو صرف 65 روپے میں، یعنی جیب پہ ہلکا، صفائی میں بھاری۔ ویلکم بیک ناظرین، بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے کندکوٹ سے، جس کے قریب قومی شاہراہ پر دھند کے باعث ٹرک اور مسافر کوچوں میں تصادم ہوا، 6 افراد جاں بحق ہو گئے، 35 زخمی ہوئے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے 10 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو یہاں پر بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں پر بتائیں کہ کندکوٹ کے قریب قومی شاہراہ پر دھند کے باعث ٹرک اور 2 مسافر کوچوں میں تصادم ہوا،
6 अफराद इसमें जाँ बहक हुए, 35 इसमें जख्मी हुए और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद मुहैया की जा रही है। जख्मियों में से 10 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद में अमीनपुर बाईपास के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कनकोट में जख्मियों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आपको यहाँ बताते चलें कि 10 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको गहरी चोटें आई हैं। कनकोट के करीब कौमी शाहरा पर धुंध के बायस ट्रक और 2 मुसाफिर कोचों में तसादम हुआ है। आपको एक दफा फिर यहाँ पर बताते चलें कि धुंध और तेज रफ्तारी के बायस मुख्तलिफ शहरों में हादसात पेश आए हैं। 11 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पंजाब और सिंध के कई इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं। आपको यहाँ बताते चलेंगे मोटर वे पर भी कई मकामात और कौमी शाहराहों पर हद निगाह 0 हो गई है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी गई है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि फैसलाबाद अमीरपुर बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। कौमी शाहरा पर ट्रक और तसादुम हुआ है 2 गाड़ियों में। आपको बताएं कि मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कनकोट में 2 बसों और ट्रक में तसादुम हुआ। उधर गुजरात में शादी से वापसी पर खानदान हादसे का शिकार हो गया, जबकि फैसलाबाद में 2 अफराद ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में जलालपुर जट्टा रोड पर कैरी डब्बा और शहजोर डाले के तसादुम में एक ही खानदान की नन्ही बच्ची और 2 खवातीन जिंदगी से हाथ धो बैठी। खानपुर रहीम यार खान रोड पर तेज रफ्तार बस ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में 2 अफराद ने मौका पर जान दे दी, जबकि 3 शदीद जख्मी हैं। अलीपुर में तेज रफ्तार ट्रालर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। नारोवाल में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर खातून जाँ बहक, बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। घोटकी में दाद लगारी रोड पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान से गया। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं कि कनकोट के करीब कौमी शाहरा पर धुंध के बायस ट्रक और 2 मुसाफिर कोचों में तसादुम हुआ। 6 अफराद इसमें जख्मी हुए, जबकि सिंध और पंजाब में भी मौसम सरमा की तातीलात आज खत्म हो गई हैं। बच्चों ने स्कूल जाने से इनकार किया और तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। लाहौर में कुछ निजी स्कूल 1 हफ्ते बाद खुलेंगे। दिसंबर की छुट्टियां खत्म हो गईं, स्कूल दोबारा खुल गए और इस वक्त स्कूलों में बच्चों और असातिज़ा की आमदोरफ्त कैसी है और छुट्टियों के बाद बच्चों का क्या कहना है, ये जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान अली से। जी उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त लाहौर के स्कूलों में? जी शबी, जैसा कि दिसंबर की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि कराची से भी हमारे साथ उस्मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। उस्मान, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस स्कूल के बाहर मौजूद हैं और क्या आपके पास जो है वो तफसीलात हैं इस हवाले से? जी शबी, इस वक्त मैं लाहौर एम्प्रेस रोड पर वाक़या गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल के सामने मौजूद हूँ और जैसा कि दिसंबर की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चों की आमद का सिलसिला शुरू है, लेकिन जिस तरह बच्चों बड़ी तादाद में जो जितनी यहाँ पर तादाद बताई जा रही है उतनी तादाद यहाँ पर नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर आए हैं और उन लोगों ने छुट्टियां किस तरह एंजॉय की हैं, उनसे बात करते हैं कि दिसंबर की छुट्टियां इन लोगों ने किस तरह एंजॉय की। ये बताइएगा, आपने छुट्टियां किस तरह एंजॉय की हैं? हमने छुट्टियां बहुत मजे से गुजारी। हम चिड़ियाघर गए, लार्सन बाग गए, हम दोस्तों के घर गए। अब छुट्टियां खत्म हो गई, आने का दिल नहीं कर रहा था, पढ़ाई करने से। तो अच्छा, इनका आने का दिल नहीं कर रहा था लेकिन पढ़ाई की खातिर ही आए हैं। कुछ और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, बहुत खुशी हुई है छुट्टियां करके। आज बाकी जैसे भाई कह रहे हैं कि आज स्कूल आने को दिल नहीं कर रहा था और रात को नींद नहीं आ रही थी कि सुबह स्कूल आना। तो फिलहाल बहुत मज़ा आया छुट्टियां करके और बहुत दोस्तों के घर गए हैं, बहुत कज़न वगैरह आए थे, उनके साथ बहुत मज़े किए हैं। ये आपने सुना, ये बच्चे जिस तरह अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे थे। इन लोगों ने छुट्टियां जो दिसंबर की बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, दोस्तों के साथ फिरे और पार्कों में भी उन्होंने सैर की। लेकिन बच्चों का वही कहना, जिस तरह हम भी जब अब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त हम लोगों का भी जब छुट्टियों के बाद स्कूल आने को दिल नहीं कर रहा था, बच्चों का भी ऐसी सूरत हाल है। बच्चों का कहना ये है कि इनका छुट्टियों के बाद आने को दिल नहीं कर रहा था लेकिन पढ़ाई की खातिर आए हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है बच्चों की तादाद के हवाले से बात करें तो तकरीबन इनकी जो अभी तक जो परसेंटेज हाजिरों के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 60-70% बच्चे जो है वो स्कूल आना शुरू हो गए हैं और
لاہور میں تقریباً مکمل طور پر اسکول نہیں کھلے. کچھ اسکول ایسے ہیں پرائیویٹ جو کہ لاہور میں آج بھی بند ہیں اور وہ 4 تاریخ کو کھلیں گے, لیکن گورنمنٹ کے جو تمام اسکول ہیں وہ کھل چکے ہیں اور بچوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہے اور اساتذہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. جی عثمان علی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. آپ لاہور سے ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. کراچی کا رخ کریں گے. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیوز محمد حماد, ان سے معلوم کرتے ہیں. حماد بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں, اور جس طریقے سے لاہور میں بچے ہمارے ساتھی کو بتا رہے ہیں کہ اسکول آنے کو دل نہیں کر رہا تھا, رات بھر جو ہے وہ نیند نہیں آئی صرف اس وجہ سے کہ صبح اسکول دوبارہ سے کھل رہے ہیں, تو آپ جہاں پر موجود ہیں, جس اسکول کے باہر موجود ہیں, کیا صورتحال ہے؟ بچے آ رہے ہیں خوشی خوشی؟ جی دیکھیں, بالکل موسم سرما کی تعطیلات کے بعد جو ہے کراچی کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول جو ہے آج کھل چکے ہیں, اور میں اس وقت موجود ہوں صدر کے علاقے, صدر میں واقع سینٹ پیٹرک اسکول کے باہر, جہاں پر جو ہے بچوں کی جو حاضری ہے وہ یہاں پر لگنا شروع ہو گئی ہے. اسکول کے اندر جو ہے بچے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ سینٹ پیٹرک اسکول ہے جس کے باہر میں موجود ہوں. یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ بچے, چھوٹے بچے جو ہے بڑے مایوس ہو کر یہاں پر اسکول آئے ہیں, کیونکہ جب ہماری یہاں پر کچھ بچوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو سردیاں کراچی میں شروع ہوئی ہیں اور ہماری چھٹیاں جو ہیں وہ اسکول کی ختم ہو چکی ہیں, تو اسکول کی جو ہے مزید اور چھٹیاں مل جاتی تو ہم تھوڑا اور انجوائے کر لیتے اور سردی کو بھی انجوائے کرتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سردیاں جو ہے کراچی میں ویسے ہی کم پڑتی ہیں, تو سردی جو ہے ابھی کراچی میں شروع ہوئی ہے اور بچوں کے اسکول جو ہے وہ آج سے کھل چکے ہیں. جبکہ کچھ اسکول ایسے بھی ہم نے دیکھے کراچی میں جو اب بھی بند ہیں. یہ میں جو جس اسکول کے باہر موجود ہوں سینٹ پیٹرک, اسی کے برابر میں ایک اسکول جو ہے قائم ہے, وہ اسکول یہاں پر بند ہے. وہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ اسکول آئے, تو جب ان کو جو اسکول کا جو چوکیدار ہے جو گیٹ پر موجود تھا, اس کا یہ کہنا ہے کہ اسکول کی جو ہے آج چھٹی ہے, اسکول جو ہے کل سے کھلے گا یا 2 دن بعد کھلے گا. تو بچے جو ہے کافی مایوس ہو کر چلے گئے, اور والدین نے بھی جو ہے شدید غصے کا اظہار کیا, اور چوکیدار سے کہا اگر اسکول بند تھا تو پہلے بتا دیا جاتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ کراچی میں کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جو ہے بچوں کی جو حاضری ہے وہ تقریباً 50% ہے, اور وہاں پہ بچے آ رہے ہیں اور کافی خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ کچھ بچوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے چھٹیوں میں جو ہے کافی انجوائے کیا, اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کیا, اور جو ہے مختلف علاقوں میں جو ہے سیر و تفریح کرنے کے لیے گئے. جی کراچی میں کچھ اسکول کھلے ہیں اور کچھ اسکول جو ہے وہ بند ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حماد, جو کہ ہمیں کراچی سے جو ہے وہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. لاہور سے ہمیں عثمان علی نے تفصیلات سے آگاہ کیا. اسکول کی چھٹیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں. بچے جو ہیں وہ لاہور سے, جیسے ہم نے معلوم کیا, خوش نہیں تھے اسکول جاتے ہوئے, اور رات بھر وہ سو بھی نہیں سکے کیونکہ صبح اسکول جانا تھا. جبکہ کراچی میں کچھ اسکول کھلے ہیں اور کچھ اسکول جو ہیں وہ بند ہیں. جہاں پر کراچی میں کچھ اسکول کھلے ہیں وہاں پر بھی بچوں کی حاضری آج بہت کم ہے, اور جو بچے آ رہے ہیں ان میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ خوشی خوشی آ رہے ہیں, لیکن ایک زیادہ تعداد بچوں کی وہ ہے جو کہ ابھی مزید چھٹیاں کرنا چاہتے تھے. اور کراچی سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. سائٹ بھوانی 40 میں حساس اداروں اور پولیس نے کارروائی کر کے کلعدم تنظیم کے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے ہیں. ملزمان سے 2 آوان گولے, ڈیٹونیٹرز اور اس کے علاوہ بارودی مواد اور بال بیرنگز برآمد ہوئے ہیں. جبکہ دوسری جانب سولجر بازار پولیس نے اسپتال سے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں شہر قائد کراچی سے. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. سائٹ بھوانی 40 میں حساس اداروں اور پولیس نے کارروائی کر کے کلعدم تنظیم کے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے. جبکہ ملزمان سے 2 آوان گولے, ڈیٹونیٹر وائرز, بارودی مواد اور بال بیرنگز برآمد ہوئے ہیں. اور آپ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ امن و امان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج صبح طلب کر لیا ہے. جبکہ اجلاس میں نئے کور کمانڈر اور نئے ڈی جی رینجرز بھی پہلی مرتبہ شریک ہوں گے. آپ کو یہاں پر بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے امن و امان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج صبح طلب کر لیا ہے. اجلاس میں نئے کور کمانڈر اور نئے ڈی جی رینجرز بھی پہلی مرتبہ شریک ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے صبح ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے. اجلاس میں امن و امان سے متعلق حکمت عملی بنائی جائے گی, اور ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ نئے کور کمانڈر ڈی جی رینجرز پہلی بار اجلاس میں شرکت کریں گے. اجلاس میں امن و امان سے متعلق حکمت عملی بھی بنائی جائے گی.
ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, आपको बताएं कि नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम हो गई। पत्तों की मियां मुल्तान और मियांवाली पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मुल्तान एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। धुंध के बायस मोटरवे M4 गोजरा से फैसलाबाद तक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर करने से मना किया है। ड्राइवर हजरात दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रही है धुंध के हवाले से। नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। पत्तों की मियां मुल्तान और मियांवाली पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई और मुल्तान एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ और धुंध के बायस मोटरवे M4 गोजरा से फैसलाबाद तक के लिए बंद कर दी गई है। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें फैसलाबाद से इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। अब्दुल बासित, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास फैसलाबाद में धुंध के हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद और इसके गिरदुनवा में जो गुज़िश्ता रात से जो धुंध के जो बादल है वो आसमान से ज़मीन की तरफ जो मुंतकिल होना शुरू हो गए थे। अभी भी जो फैसलाबाद के जो बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर धुंध ने जो है इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। अगर शहर के अंदरूनी इलाकों की बात की जाए तो शहर के अंदरूनी इलाकों में जो धुंध का राज है वो कदरे कम है, लेकिन जैसे जैसे शहर से बाहर निकलते जाएँ, मैदानी इलाकों की तरफ जाए, खुले इलाकों की तरफ जाए, तो शदीद धुंध के बायस जो शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है और शदीद धुंध की वजह से फैसलाबाद से मोटरवे के तीनों इंटरचेंजेस को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 पर मुकम्मल तौर पर जो ट्रैफिक का दाखिला है वो बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को मजबूरन जो है GT रोड को जो है जो आने जाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है और GT रोड पर लंबी लंबी कतारें लग जाने के बाद शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात का सामना है। तो दूसरी जानिब अगर ट्रैफिक हादसा की बात की जाए तो धुंध की वजह से जो गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर अंदर जो ट्रैफिक हादसा जो रूनुमा हुए उसमें तकरीबन 10 से ज़ायद जो अफराद हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो जख्मी होकर हॉस्पिटल का जो रास्ता इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। और साथ में अगर महकमा मौसमियात की जानिब देखा जाए तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा जो है तकरीबन 8 से 10 दिन तक इसी तरह जो बदस्तूर जो धुंध का राज जारी रहेगा। अभी दूर दूर तक कहीं भी जो बारिश के इम्कान दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से शहरियों को धुंध और खुशक सर्दी जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगी। और अगर महकमा ट्रैफिक पुलिस और हाईवे पुलिस की जानिब देखा जाए तो उनका यही कहना है कि जो शहरी हैं वो किसी भी किस्म के गैर जरूरी सफर से जो इज्तनाब बरतें और अगर किसी हंगामी सूरत हाल में या एमरजेंसी में अगर शहरियों को सफर करना पड़ता है, घरों से बाहर निकलना पड़ता है, तो गाड़ियों पर जो है फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, रिफ्लेक्टिंग जो स्टिकर्स हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी किस्म के जो ट्रैफिक हादसा है उससे बचा जा सके। अगर दर्जा हरारत देखा जाए तो फैसलाबाद और इसके गिरदुनवा में जो अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। और साथ में महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जो खुशक सर्दी है उसके बचाव के लिए जो शहरियों को एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए, गर्म लिहाफ का, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, गर्म खुराकों का इस्तेमाल करें, ताकि जो मौसमी बीमारियां जो खुशक सर्दी की वजह से जो शहरियों को जो अपना शिकार बना रही हैं उससे शहरी बच सकें। और साथ में अगर हॉस्पिटल्स की सूरत हाल देखी जाए तो हॉस्पिटल जो है वो भी जो मरीजों के साथ भरते चले जा रहे हैं। मौसमी बीमारियों शहर के बेशतर इलाकों को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया आपका हमें फैसलाबाद से धुंध के हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। और भारत का दुनिया में पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब चकना शुरू हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की भारतीय करारदाद मुस्तरद कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। आने वाले दिनों में भारतीय मुदाखलत के मजीद सबूत सलामती कौंसिल को पेश करेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात, भारत को एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ी। सलामती कौंसिल में भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियों की करारदाद मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए करारदाद जमा कराई, जिसमें पाकिस्तान पर दाइश और अलकायदा की मदद का इल्जाम लगाया, जो सलामती कौंसिल ने मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय करारदाद का मुस्तरद होना भारत की जानिब से अहम फॉर्म को सियासी मकासद के इस्तेमाल करने के एजेंडे का भी मुस्तरद होना है। इस्लामाबाद पर इल्जाम लगाकर नई दिल्ली ने अपने जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की, जो बुरी तरह नाकाम हुई। और बात करेंगे आप कुछ जन्नत नज़ीर की, यानी कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जंग जारी है और कश्मीरी 2016 को पैलेटेड के नाम से याद रखेंगे। आज़ादी की उम्मीद लिए कश्मीरी नए साल में भी भारतीय जहरियत का मुकाबला करेंगे। कश्मीर की कर्बनाक कहानी, कई सालों की तरह मकबूजा कश्मीर इस बार भी अपने जख्म के साथ नए साल में आजादी की उम्मीद लिए दाखिल हुआ। मारूफ अखबार के मुदीर कहते हैं कि भारत ने किसी तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया। 2016 में
people are not able to come out of that fear psychosis, and that may remain during this year also, even if peace prevails. कश्मीरी मीडिया ने कहा कि कश्मीरियों को दर्द, कर्ब, मजालिम और बेबसी के सिवा कुछ नहीं दिया गया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक सैकड़ों अफराद शहीद हुए, हजारों जख्मी हुए और हजारों ही कैद खानों में हैं। अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते हैं। इस पार भी लेंगे, उस पार भी लेंगे, हम लेके रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि मुसलमानों को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा से अलहदगी इख्तियार करके अपनी इस्लामी अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका फ़ौज और निसाब तालीम बनाए। 2017 जदोजहद और इनकलाब का साल है। इस्लामती कौंसिल कफन चोरों का एक टोला है जो गूंगा, बहरा और अंधा होकर रह गया है। जमात इस्लामी ने कराची में शाम और बर्मा के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए उम्मत रसूल मार्च का इनेकाद किया, जिसमें शहर भर से बड़ी तादाद में मर्दों, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। उम्मत रसूल मार्च से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि हल्ब में होने वाले जुल्म पर पाकिस्तान में कब्रिस्तान की सी खामोशी है। कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा जमाया है, रोज अव्वल से फलस्तीन पर यहूदियों ने कब्जा किया है और आज हलब के मुसलमानों पर जो बारूद की आग बरसाई जा रही है, तो जमात इस्लामी आज पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है। सिराजुल हक ने कहा कि सलामती कौंसिल कफन चोरों का एक टोला है जो अंधा, गूंगा, बहरा होकर रह गया है। मुसलमानों को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा से अलहदगी इख्तियार करके अपनी इस्लामी अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका फौज और निसाब तालीम बनाए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ललकारने वाले मोदी को मोदी की जबान में जवाब देना होगा। जब तक अमेरिका उनको जुल्म ना कहे, मुसलमान हुक्मरान उसको जुल्म नहीं कहते हैं। सिराजुल हक का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को जानवरों की नस्ल कुशी पर तो तशवीश है, लेकिन मुसलमानों की नस्ल कुशी नजर नहीं आती। 2017 जद्दोजहद और इस्लामी इनकलाब का साल होगा। कैमरामैन शाहिद सत्तार और साथी रिपोर्टर कामरान सुहेल के हमरा हामिदुर रहमान, न्यूज़ कराची। ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां पर देते चलें। आपको बताएं कि भारत सयाहों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। इसराइल ने अपने शहरियों को भारत का सफर करने से मना कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहां पर बताते चले कि भारत सयाहों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है और इसराइल ने अपने शहरियों को भारत का सफर करने से मना कर दिया है। इसराइल ने भी अपने शहरियों को भारत का सफर करने से मना कर दिया। भारत सयाहों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। और व्हाट्सएप सार्फिन के लिए बड़ी खबर। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग की आड़ में खुफिया मालूमात के हुसूल के लिए पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन पर साइबर हमला कर दिया है। हुकूमत ने बचाव के लिए इंतबाही खत तो जारी कर दिया। इकदाम कौन करेगा, एहतियाती तदाबीर और इकदाम क्या होंगे, बता रहे हैं इस्लामाबाद से अली शेर। खुफिया एजेंसी रॉ ने हैकर्स के जरिए वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग फीचर के जाली लिंक या ईमेल की आड़ में पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन पर साइबर हमला कर दिया है, जिसकी तस्दीक काबीना डिवीजन के एक इंतबाही खत ने कर दी है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय शहर मुंबई में रजिस्टर्ड जबकि अमेरिका से ऑपरेट होने वाले 2 व्हाट्सएप एड्रेसेस से पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को वीडियो लिंक डाउनलोड या क्लिक करने के लिए कहा जाता है। जो ही ऐसा किया जाए, सारिफ का डेटा भारतीय हैकर्स के पास चला जाता है। पाकिस्तान में IT माहिर साबिक सरबरा USF परवेज इफ्तिखार कहते हैं कि खुफिया एजेंसियां हैकर्स के जरिए करोड़ों की तादाद में व्हाट्सएप डेटा इकट्ठा करती हैं, जिसके तजिए के बाद उसमें से इंतहाई हिसास खुफिया डेटा इस्तेमाल में लाया जाता है। यही कुछ भारत कर रहा है। सारे लोगों का डाटा तो उनको ज़ाहिर है नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का डाटा जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि उनके लिए वैल्यूएबल है, वो उसके लिए डाटा माइनिंग करते हैं बाकायदा। IT माहिर परवेज इफ्तिखार का कहना है कि IT के जदीद दौर में इकदामात और आगाही मिलकर ही ऐसे साइबर हमले कम कर सकते हैं। मोबाइल कंपनियां जो हैं वो अपने हर सारिफ को आगाह करें, अवेयरनेस, वही बात, हर यूजर को बताएं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एहतियाती तदाबीर में कहा है कि अगर आपने कभी गलती से ऐसा लिंक क्लिक किया है तो फौरी तौर पर अपने फोन को फैक्ट्री से रीसेट कर लें और ऐसे लिंक को कभी दूसरों को मत भेजें। व्हाट्सएप को हमेशा गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। अनजान शख्स के मैसेज में मजीद हदायत पर अमल मत करें और इस किस्म के मशकूक मैसेज आने पर काबीना डिवीजन के मुतलका ईमेल पर राब्ता करें। IT माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से इतलाई नोटिफिकेशन जारी करना काफी नहीं। हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि जिनसे भारतीय हैकर्स का हमला नाकाम बनाया जा सके। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ
अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तानी व्हाट्सएप सारिफीन पर साइबर हमला कर दिया है। हुकूमत ने बचाव के लिए इंतबाही खत जारी करके अपना काम पूरा कर दिया। अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश है। बाकी पाकिस्तानी हैकर्स का ये पैगाम है, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी करके दिखाएं। उनको ये किस्म मुझे थेफ्ट है, प्राइवेसी थेफ्ट है, सिंपल इज दैट, और ये बिल्कुल गलत है। हम लोग एक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ भी कर लें, हाँ वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती सतह पर राबता, दोनों ममालिक ने जौहरी तंसीबात की फहरिस्त एक दूसरे के हवाले कर दी। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे की जेलों में कैद माहिरगिरों की तफसीलात का भी तबादला ख्याल किया गया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से कौंसलर फौजिया मंसूर ने भारतीय दफ्तर खारजा में तफसीलात जमा करवाई हैं, जबकि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से कौंसलर राम गहराम ने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में तफसीलात जमा करवाई हैं। दोनों ममालिक हर साल इन फहरिस्तों का तबादला करते हैं। और आपको बताएं कि हैदराबाद की रुबीना मकबूजा कश्मीर में फंस गई। भारत गई तो शोहर धोखा देकर भाग गया। कमसिन बेटी समेत रुबीना जम्मू जेल में कैद है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने नोटिस दे लिया। पाकिस्तानी खातून शनाख्त खो जाने के बाद भारत और मकबूजा कश्मीर में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुई। जम्मू कश्मीर की जेल में कैद रुबीना और इसकी मासूम बच्ची आज़ादी की मुंतजर हैं। रुबीना का कहना है कि 4 साल पहले पाकिस्तान से दमे के इलाज के लिए दिल्ली आई थी। इनका शौहर पैसे और सफरी दस्तावेजात लेकर चला गया, जिसके बाद वो दरबदर हो गयी। रुबीना पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए पहले वाघा बॉर्डर आई, लेकिन इन्हें नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर पाकिस्तान में दाखिल होने नहीं दिया। फिर जम्मू कश्मीर चली गयी, जहाँ भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर हाई कोर्ट में रुबीना का मुकदमा चल रहा है। और आपको बताएं कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के दौरान शुमाली वज़ीरिस्तान से अफगानिस्तान नकल मकानी करने वाले मुतासरीन को वापस अपने इलाकों को मुंतकिल करने के लिए लाया अमल तैयार कर लिया गया है। वापसी का अमल 15 जनवरी 2017 से शुरू होगा। मुतासरीन को बकाखेल कैंप पे रजिस्ट्रेशन के बाद आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा, जबकि वापसी का अमल 3 मरहलों में मुकम्मल होगा। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के दौरान शमाली वजीरिस्तान से हजारों अफराद अफगानिस्तान के महफूज इलाकों में पनाह ली है, जिसके बाद शमाली वजीरिस्तान के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अफगानिस्तान के इलाके खोस्त में कायम महाजर कैंप में मुकीम शमाली वजीरिस्तान के मुतासरीन को पाक अफगान बॉर्डर गुलाम खान के रास्ते वापस लाया जाएगा, जिन्हें बकाखेल कैंप में ठहराया जाएगा, जहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद इन्हें अपने इलाकों को रवाना किया जाएगा। मुतासरीन की वापसी का अमल 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में 2000 खानदान पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। जराये के मुताबिक ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के दौरान 6 से 8 हजार अफराद ने शमाली वजीरिस्तान से अफगानिस्तान के इलाके खोस्त को नकल मकानी की है और वहाँ पर इलाका गुरबज में कायम गुलान महाजर कैंप में रिहाइश पजीर है। अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज, पेशावर। और आपको बताएं कि न्यू न्यूज ने 2017 में भी पाकिस्तानियों की आवाज बनने का बेड़ा उठा लिया। लाहौर के रिहायशी माजूर अली हसन की आवाज हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज पहुंच गई उसके घर। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अली वकार सिंधु अपनी इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं लाहौर के इलाके मुस्तफा टाउन से मुल्हिका रिहायशी इबादी मिल्लत कॉलोनी के, जहां एक किराए के कमरे में सुरैया बीबी 17 साला माजूर बेटे अली हसन के साथ मुकीम हैं। अली हसन बचपन ही में ऐसे मर्ज का शिकार हो गया जिससे वो बिस्तर पर ही अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। यतीम बच्चे अली हसन की वालदा अपने एक कमरे में ही परचून की दुकान बनाए अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा करती है। सुरैया बीबी का शिकवा है कोई इनकी दाद रसी नहीं कर रहा। बेटे का इलाज और रहने को छत इनका मुतालबा है। रोटी का इंतजाम हो जाए, मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। नियो न्यूज ने कोशिश की है कि अली हसन और इसकी वालदा का दुख हुकामे बाला तक और मुखय्यर हजरात तक पहुंच सके और कोई आकर उनके दुखों का मुदावा करे। अली हसन और उसकी वालदा सुरैया बेबी पुरअज़्म है कि 2017 उनके और उनके बेटे के लिए खुशियों भरा साल साबित होगा। कैमरामैन मुमताज अली के साथ अली वकार सिंधु, नियो न्यूज, लाहौर।
ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे टोबर टेक्सिंग के बाद गुजरांवाला में भी शराब से हलाकतों का एक और वाकया। थिएटरी सांसी में जहरीली शराब पीने से 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, एक दफा फिर आपको यहां पर बताएं कि टोबर टेक्सिंग के बाद गुजरांवाला में शराब से हलाकतों का एक और वाकया सामने आया है। थिएटरी सांसी में जहरीली शराब पीने से 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें तिब्बी इमदाद मुहैया की जा रही है अस्पताल में। आपको बता चलें कि 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं जहरीली शराब पीने की वजह से। इससे पहले एक वाकया पेश आया था टोबर टेक्सिंग में, जहां पर जो है वो 150 के करीब तादाद बताई गई थी जिन लोगों ने शराब पी थी और उनकी हालत गैर हुई थी, जिनमें से 50 के लगभग अफराद थे जो कि हलाक हो गए थे। टोबर टेक्सिंग के बाद गुजरांवाला में शराब से हलाकतों का एक और वाकया पेश आया है। थिएटरी सांसी में जहरीली शराब पीने से 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अतीकुर रहमान, बताइएगा क्या मामला है ये अफसोसनाक वाक़या थाना सदर के इलाका चेडी सांसी में पेश आया, जहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर की मुनासबत से कुछ लोगों ने पार्टी तरतीब दे रखी, जहाँ पर मुबैना तौर पर यह जहरीली शराब पी गई और इसके नतीजे में 4 अफराद हलाक, जबकि 2 तशवीशनाक हालत के पेश नजर लाहौर रेफर कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि पार्टी एक मरूफ साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है अटावा के करीब, इसके अंदर हुई है, जबकि पुलिस मुसलसल टाल तोड़ से काम ले रही है और उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सारी अमवात पिछले 2 दिनों के दौरान हार्ट अटैक से हुई। जबकि लोगों का ये भी कहना है कि गुज़श्ता साल भी इसी इलाका में शराब पीने से एक शख्स हलाक हो गया था और पुलिस ये शराब की खुलेआम फरोख्त को कंट्रोल नहीं कर सकी। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें बता रहे थे कि थाना सदर के इलाके में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनका नाम शहबाज, वकील, कैफ और मुनीर बताए जा रहे हैं, जबकि मोहम्मद रियाज और तनवीर की हालत तशवीशनाक है। गुरसा के मुताबिक 3 धुंध की वजह से मौसम तो सर्द है, लेकिन बात करेंगे कुछ सियासी गर्मा गर्मी की। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान में लफ्जी जंग छिड़ गई है। दोनों जानिब से तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। कप्तान ने जावेद हाशमी का ज़हनी तवाज़ुन खराब करार दे दिया, तो जवाब में क्या क्या सुना जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौम के सामने ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। हमारे जो स्क्रिप्ट लिखने वाले थे, जो भी थे, वो जो है करामन कातिबीन थे। जावेद हाशमी ने इसी पर इक्तफा न किया, कप्तान के धरने से मुतालिक मजीद इंकशाफात भी कर दिए। बताया कि इमरान खान टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनवाना चाहते थे। इलेक्शन में पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट कैसे जितवाएगी ये भी कप्तान ने बता दिया था। नासिर मुल्क वो हमारी बात इंशाल्लाह ये असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएंगी और असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास होगी और फिर हम जीतेंगे। जावेद हाशमी ने दावा किया कि जहांगीर तरीन ने उन्हें कहा था कि गारंटी देने वालों से 5 लाख बंदे इस्लामाबाद लाने का वादा किया गया था। चंद हजार अफराद की वजह से अंपायर सामने नहीं आ रहा था। धरने में कौन कहां बैठेगा ये भी स्क्रिप्ट वालों ने तय किया। यहाँ पे 5 लाख आदमी हम लाएंगे। मैंने कहा कि क्यों नहीं वो हो रहा अंपायर की उंगली का इशारा। उसने कहा हमने जो उनसे कमिटमेंट की थी, ये लफ्ज थे, वो कमिटमेंट हमने पूरी नहीं की, तो वो कैसे आएंगे आगे। जावेद हाशमी ने मुतालबा किया कि तहकीकाती कमीशन इमरान खान और उन्हें एक जगह बिठाए, फिर फैसला करे कि सच क्या है झूठ क्या है। और बुजुर्ग सियासतदान जावेद हाशमी ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं कि मियां साहब ने 1999 में बंदूक की नोक पर इस्तीफा ना दिया तो इमरान खान के धरने पर कैसे दे रहे थे। जनरल महमूद ने नवाज शरीफ को इस्तीफा ना देने पर कत्ल की धमकी दी थी। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी जारहाना मूड में आए तो फिर रुक ना पाए। 1999 में नवाज शरीफ से केस ने गन पॉइंट पर इस्तीफा मांगा, सब बता दिया। उन्होंने दावा किया कि 1999 में जनरल महमूद ने रिवाल्वर की नोक पर नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा, लेकिन मियां साहब ने साफ इनकार कर दिया। ये आपका इस्तीफा है और असेंबलियों को डिसॉल्व करने का हुक्म है। उन्होंने कहा अगर मैं ना करूं तो उन्होंने कहा
फिर उन्होंने उससे रिवाल्वर निकाला महमूद खान ने, महमूद था क्या नाम, उसने कहा, फिर मियाँ साहब ने कहा मुझे मार देंगे, उसने कहा मैं मार दूंगा। फिर बोले जनरल राशिद कुरैशी के बंदों ने भी कप्तान को दो टोक अल्फाज में कहा था कि नवाज शरीफ किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। कप्तान के पहले रोज ही साल के पहले रोज ही कप्तान ने बागी को ललकारा तो जावेद हाशमी ने 2014 के धरने की कहानी सुना दी। जावेद हाशमी ने क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैंने जहांगीर तरीन को कहा कि भाई आपका वो जो है वो उंगली हलाने वाला अंपायर क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा हमने जो उनसे कमिटमेंट की थी 5 लाख आदमी हम लाएंगे, 36,500 ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जमा कर सके तारुल कादरी के, और हमारे मिल के वो कमिटमेंट हमने पूरी नहीं की तो वो कैसे आएंगे आगे। हमारे जो स्क्रिप्ट लिखने वाले थे, करामन कातिबीन थे, उन्होंने लिखा तारुल कादरी साहब पार्लियामेंट की तरफ बैठेंगे, आप लोग पीछे बैठेंगे। इमरान खान की बात ये आती थी कि पहले कादरी जाके कब्जा करेगा असेंबली के अंदर, पीछे हम चले जाएंगे और वहाँ जाके कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। इमरान ने मुझे कहा कि जो ये तसद्दुक जिलानी है ये चला जाएगा और उसके बाद आ जाएगा नासिर मुल्क, वो हमारी बात इंशाल्लाह ये असेंबलियाँ डिज़ॉल्व कर दी जाएंगी और असेंबलियाँ डिज़ॉल्व करने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास होगी और फिर हम जीतेंगे। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी मुझे लगती थी और उसी वक्त जब उन्होंने जजेस को इसके लिए छुट्टियां मंसूख की तो मुझे पता था ये लास्ट आइटम है। तब्दीली उंगली उठने से नहीं, आवाम की मदद और सियासी इतिहाद से ही आएगी। मौला बख्श चांडियो कप्तान और सीनियर सियासतदान पर चढ़ दौड़े। कहते हैं कि जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ में रहकर राज उगलते तो मजा आता। उधर फरतुल्लाह बाबर ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के ऐलान का खैर मकदम कर दिया। हैदराबाद में मुशीर इत्तला सिंध ने इमरान खान पर वार भी किए और जावेद हाशमी पर गुस्से का इजहार भी। मौला बख्श चांडियो ने पीटीआई चेयरमैन को किसी के मशवरे पर चलने का ताना दिया। तब्दीली कैसे आएगी ये भी बता दिया। हम किसी को तौहीन नहीं कर सकते। मेरे कायद ऐलान कर रहे थे कि हम पनामा के इशू पे साथ देंगे, जरूरत पड़ी तो रास्तों पे आएंगे, और ये कह रहे थे हमें पीपल्स पार्टी जरूरत नहीं है। वो एक मुद्दब्बिर है रावलपिंडी में, उनके कहने पे। इमरान खान रावलपिंडी के मुद्दब्बिर के कहने पर पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते। उन्होंने कप्तान की गुफ्तगू को अपोजिशन इत्तेहाद में रुकावट की बड़ी वजह करार दिया और साथ ही साथ धांधली के खिलाफ डट जाने का आज़म भी दोहराया। तब्दीली उंगली से नहीं आएगी, तब्दीली लोगों से आएगी, तब्दीली सियासी इत्तेहाद से आएगी। दूसरी जानिब सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने के ऐलान का खैर मकदम किया है। उनका कहना था कि इमरान खान यू टर्न के माहिर हैं, लेकिन उम्मीद है वो इस ऐलान पर कायम रहेंगे। और मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि आसिफ जरदारी और मौला बख्श मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का नतीजा पानी में मधानी के सिवा कुछ नहीं निकला। जब तक अपोजिशन जमात इकट्ठी नहीं होती ग्रैंड अलायंस नहीं बन सकता। अदलिया को सियासत में नहीं लाना चाहिए। लाहौर में चौधरी बरादरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहां हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, वहां अपोजिशन से भी गिले शिकवे किए। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का नतीजा पानी में मधानी के सिवा कुछ नहीं निकला। पानी में अगर मधानी डाल रहे हैं तो मक्खन निकाल सकते हैं आप। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये उस वक्त तक नहीं बन सकता जितनी देर तक सारी पार्टी जो है वो कठिन हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी परवेज लाही ने नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए कहा कि नए बल्दियाती नुमाइंदे रुल जाएंगे। पहले तो बात सुन रहे, 2008 में हमारा जो पॉपुलर वोट था वो नून से भी ज्यादा था, पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा। 2013 का इलेक्शन जो था ये तो इफ्तिखार चौधरी का इलेक्शन था और कहनी साहब का इलेक्शन था, और नवाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह खीर खाने वाले थे, उसमें खीर खाई है उन्होंने।
इससे कबल जिला बहावलनगर की बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ असद सुहैब, नियो न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के 2 करोड़ नौजवान नए साल के आगाज पर तहिया कर बैठे हैं कि मुल्क की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे, लेकिन यूथ पॉलिसी के ऐलान के बावजूद सूबाई हुकूमत ने ताहाल उनके लिए खास मंसूबों का ऐलान नहीं किया। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा में JIU विंग के ज़ेर एहतमाम होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पहले मरहले में 4 लाख से ज्यादा नौजवानों ने अपना वोट पोल किया। 627 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं इस इलेक्शन के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, और JIU ने इस सिलसिले में जो मेंबरशिप की है तो 4.25 लाख अफराद इसमें नौजवान जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमाओं के मुताबिक पेशावर में 43 यूनियन कौंसिल्स में इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि उम्मीदवारों की तादाद 285 है। आज जिला पेशावर में 43 यूनियन कौंसिल में 285 उम्मीदवार खड़े हुए हैं JIU के इलेक्शन के लिए, और ये पहला मरहला है उसमें। जमात इस्लामी के मुताबिक यूथ विंग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मकसद नौजवानों में सियासी शऊर और जमहूरी निज़ाम से आगाही पैदा करना है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं कि सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के गर्ल्स हॉस्टल में तलबा की पुलिसरार मौत। और आपको यहाँ बताएं कि पुलिस के मुताबिक 22 साला तालिबा नायला ने खुद को पंखे से बांधकर खुदकुशी की है, और इस हवाले से पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। लड़की कमर शहर के गोट रन की रिहायशी बताई जाती है। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबा की पुलिसरार मौत, और पुलिस के मुताबिक 22 साला तालिबा नायला ने खुद को पंखे से बांधकर खुदकुशी की है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। लड़की कंबर शहर के गोट रंद की रिहायशी बताई जाती है। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबा की पुलिसरार मौत। पुलिस के मुताबिक 22 साला तालिबा नायला ने खुद को पंखे से बांधकर खुदकुशी की है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। और न्यूज ने इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली तैयबा की वालिदा को ढूंढ निकाला। उधर जड़माला में बच्ची के वालिदैन होने के झूठे दावेदार फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि बच्ची DNA टेस्ट के बाद ही वालिदैन के हवाले की जाएगी। तैयबा कौन है, किसकी बेटी है, जानिए इस रिपोर्ट में। बच्ची मेरी है, जिनका नाम तैयबा है, उनका असल नाम सना है। यतीम बच्ची तैयबा का असल नाम सना है। फैसलाबाद के इलाके कमालिया से अगवा हुई, इस्लामाबाद पहुंचाकर एडिशनल सेशन जज के घर मुलाजमा लगवाई गई, जहां वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनी। मीडिया पर जड़ावाला का नौसरबाज जोड़ा बच्ची के वालदैन होने का दावा करता रहा। नियो न्यूज ने बच्ची की असल वालदा को कमालिया में ढूंढ लिया तो नौसरबाज जोड़ा घर को ताला लगाकर फरार हो गया। वालदा कौसर बीबी ने बेटी को तस्वीर से पहचान लिया। बेटी की मोहब्बत में बेचैन मां का कहना है कि सना को लेने इस्लामाबाद जाने के लिए उनके पास किराया तक नहीं, बच्ची को घर लाकर हवाले किया जाए। मैं गरीब हाँ, मेरे को इन्ना किराया नहीं है कि मैं इस्लामाबाद विचों बच्ची लेके आवां, मैनू बच्ची इत्थे मिली जावे। नियो न्यूज का शुक्रिया अदा करते हुए कौसर बीबी की आंखों से तशक्कुर के आंसू छलक पड़े। मैं न्यू चैनल का शुक्रिया अदा करनी आ कि इन्होंने सही मेरी खबर ऊपर तक पहुंचाई है। उधर इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि बच्ची से वरसा की मुलाकात मजिस्ट्रेट की इजाजत से होगी। DNA टेस्ट मैच कराए बगैर बच्ची को वालिदैन होने के दावेदार किसी के भी हवाले नहीं किया जाएगा। और जहलम में पाकिस्तानी नयाज जर्मन खातून का कत्ल कैसे हुआ, मकतूला के 14 साला बेटे ने सब बता दिया। बेटे का कहना है कि एक हवाई फायर उसने किया, फिर पिस्तौल अब्बू को दे दिया। अब्बू ने अम्मी को गोली मार दी और कहा कि सबके सामने मौत का सबब दिल का दौरा बता दो। पाकिस्तानी निजात जर्मन खातून कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, बेटे ने मां की कब्र पर बैठकर सारी कहानी सुना दी।
दोस्तों से गुफ्तगू में मकतूला के बेटे ने बताया कि पिस्तौल अब्बू के दाढ़ी वाले दोस्त ने दिया। मैंने एक हवाई फायर किया, फिर पिस्तौल अब्बू को दी तो उन्होंने अम्मी को गोली मारकर अल्लाहू अकबर कहा। फिर मामा ने क्या बोला था? चीख की आवाज आई थी। हाँ, गिर गई थी। अच्छा, गिर गई थी। क्या बोला था मामा ने? फिर तुम बाकी अम्मा के पास गए। मामा ने क्या बोला फिर? अल्लाह अल्लाह। बेटे का कहना है कि अम्मी के दम तोड़ने पर अब्बू ने कहा कि अब सबके सामने झूठ बोलो, बताओ कि माँ की मौत दिल का दौरा पड़ने के नतीजे में हुई। उसने कहा झूठ बोलो। क्या झूठ बोलो? कि शूटिंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कि हार्ट अटैक आया। फिर आपने झूठ बोला। फिर क्या हुआ? पुलिस वालों ने क्या? पुलिस वालों ने मुझे डंडा यहाँ पे मारा। बेटे ने मजीद बताया कि अब्बू इसे और वालदा को जर्मनी में भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मकतूला के बेटे ने दौरान तफ्तीश पुलिस की जानिब से तशद्दुद किए जाने का भी बताया। लाजवाब सर्विस बकमाल लोग। टोरंटो में PIA की एयर होस्टेस मशहूर ब्रांड स्टोर से कीमती अशिया चोरी करती हुई पकड़े गए। मारिया खान की जेल भेजा गया और PIA को भारी जुर्माना होने का इम्कान है। तफसीलात अयाज शुजा की इस रिपोर्ट में। लाजवाब सर्विस बाकमाल लोग। PIA का एक और कमाल, एयर होस्टेस बैरून मुल्क चोरी करते हुए पकड़ी गई। एयर होस्टेस मारिया खुन टोरंटो में एक महंगे मॉल में एक ब्रांड शॉप से चोरी करते हुए पकड़ी गई। मुलजिमा को CCTV कैमरा के जरिए पकड़ा, जिसको जेल मुंतकिल कर दिया गया, जिसको कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जबकि PIA पर भारी जुर्माने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अयाज शुजा, नियो न्यूज, लाहौर। नए साल का जश्न मनाने वालों पर इस्तांबुल के नाइट क्लब में हमला किया गया, जिसमें 39 अफराद मारे गए। तुर्की के वज़ीर आज़म बिन अली यल्दरम ने इस्तांबुल हमले में जख्मी होने वालों की आयादत की। इस्तांबुल के रीना नाइट क्लब में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे कि सेंटा क्लॉज के रूप में दाखिल होने वाले हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी। हमले में 39 अफराद मारे गए, जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हमले के वक्त क्लब में 700 अफराद मौजूद थे। तुर्की के वजीर आज़म बिन अली यल्दरम ने इस्तांबुल हमले में जख्मी होने वालों की इयादत की। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि कौम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेगी। और लंदन में नए साल की आमद पर पाकिस्तानी दस्ते की शानदार परेड ने माहौल गरमा दिया। शदीद सर्दी और बारिश में रंग बिरंगे रिवायती लिबास में मलबूस कैलाशी खवातीन की परेड ने सबके दिल जीत लिए। लंदन की बरसाती परेड में पाकिस्तानी दस्ता छा गया। शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद लोगों का जोशो खरोश देखने के लायक था। चेयर गर्ल्स के बाद जब पाकिस्तानी दस्ते की ढोल की थाप पर दमदार एंट्री हुई तो लोग तकते ही रह गए। पाकिस्तानी दस्ते में सबसे आगे थे घुड़सवार और उनके साथ थे ढोल वाले। चंद पाकिस्तानी पंजाबी पग सर पर सजाए सफेद शलवार कमीज पर सब सदरी पहने बड़े तुम तराक से आ रहे थे। सबसे दिलकश लग रही थी पाकिस्तानी खवातीन, जो कैलाश का रिवायती लिबास पहने परेड का सहरा थी। बकिंगम पैलेस से शुरू होने वाली इस परेड का इख्तिताम बरतानवी पार्लियामेंट के सामने हुआ। ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां पर देंगे। आपको बताएंगे कोयटा में 5 रोजा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी और 39 यूनियन काउंसिल्स में 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाएंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। कोयटा में 5 रोजा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 39 यूनियन काउंसिल्स में 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाएंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें, एक दफा फिर आपको बताएं कि पोलियो मुहिम दोबारा शुरू हो रही है। कोयटा में 5 रोजा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 39 यूनियन काउंसिल्स में 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाएंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की सूरत में आज 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए जाएंगे।
اور اب بات کریں گے کھیل اور کھلاڑی کی۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے پشاور کو دوبارہ پھولوں کا شہر بنانے کا دعویٰ 2016 میں بھی ایفا نہ ہو سکا۔ پشاور کی صفائی کے لیے بنایا گیا ادارہ کام نہیں کر پا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آنے کی امیدیں روشن ہونے لگی ہیں۔ نجم سیٹھی نے ویسٹ انڈیز کو کرکٹ ٹیم کے لاہور میں 2 ٹی20 میچز کھیلنے کی نوید سنا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ کالی آندھی کا دورہ سیکیورٹی کی صورتحال سے مشروط ہوگا۔ تفصیلات راشد منظور کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، کالی آندھی پاکستان آنے پر رضامند۔ کرکٹ کے دیوانے مارچ میں ہوم گراؤنڈ پر پاک ویسٹ انڈیز میچز کا لطف اٹھا سکیں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو پی سی بی نجم سیٹھی نے اچھی خبر سنا دی۔ بولے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف مارچ میں 4 ٹی20 میچز کھیلیں گے۔ 2 میچز کھیلنے کریبین ٹیم لاہور آئے گی، جبکہ 2 میچز کے لیے قومی ٹیم فلوریڈا جائے گی۔ کالی آندھی کا دورہ سیکیورٹی صورتحال سے مشروط ہے۔ ویسٹ انڈیز مان گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سیکیورٹی سچویشن ٹھیک کریں اور ہمیں کنونس کریں، اور ہم بالکل لاہور میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں ان پرنسپل۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل اور ویسٹ انڈیز کے خلاف میچز لاہور میں کامیابی سے کرانے پر دیگر ٹیمیں بھی کھیلنے آئیں گی۔ ٹیسٹ کپتان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے نجم سیٹھی نے کہا کہ اس کا فیصلہ مصباح الحق خود کریں گے۔ بھارت کے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے مسلسل انکار پر نجم سیٹھی نے کہا کہ بی سی سی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے مشاورت جاری ہے۔ کیمرامین محمد امین کے ساتھ راشد منظور، نیوز لاہور۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے پشاور کو دوبارہ پھولوں کا شہر بنانے کا دعویٰ 2016 میں بھی ایفا نہ ہو سکا ہے۔ پشاور کی صفائی کے لیے بنایا گیا ادارہ WSSP سفید ہاتھی بن گیا۔ سال بھر شہر کی سڑکیں، گلی اور کوچے حکومت کی صفائی کے نعروں کی منہ چڑھاتی تصویر بنے رہے۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے محمد نعیم کی اس رپورٹ میں۔ WSSP جو پشاور میں نکاسیاب اور صفائی کے لیے ٹھیکیداری نظام کے تحت بنایا گیا ادارہ ہے۔ اس ادارے کو پشاور کی صفائی ستھرائی کے لیے اربوں روپے کے اضافی فنڈ دیے گئے جو کارآمد ثابت نہ ہو سکے۔ یہ گند مہینوں سے پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھانے نہیں آتا، اس سے بیماریاں بھی لگتی ہے، بچے یہاں کھیلتے ہیں، ہر کوئی یہاں گند آ کے پھینک دیتا ہے، کوئی اٹھانے آتا نہیں ہے۔ اس کے لیے پراپر کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں پڑے گندگی کے ڈھیر WSSP کی جانب سے صفائی کرنے کے دعووں پر سوالیہ نشان ہیں۔ کوئی پھولوں کا شہر نہیں، گند پڑے ہوئے مہینوں سے کوئی اٹھانے نہیں آتا۔ حکومت دعوے کرتی ہے، کہاں ہے حکومت؟ کوئی اٹھانے نہیں آتا۔ یہ یہاں پر بچے کھیلتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ بلدیاتی نمائندے بھی WSSP کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز ادارے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ کیمرامین خرم جلیل کے ساتھ محمد نعیم، نیوز پشاور۔ اور آپ کو مزید بتائیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آنے کی امیدیں روشن ہونے لگی ہیں۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ سے بے دخل 35 روسی سفارتکار ماسکو روانہ ہو گئے۔ بے دخل کیے گئے روسی سفارتکاروں کے اہل خانہ بھی ہمراہ ہے، جبکہ امریکی انتخابات میں روسی ہیکرز کی مداخلت پر سفارتکاروں کا ملک بدر کیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں بتا چلیں کہ روس کی خبر رساں ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ سے بے دخل ہونے والے 35 روسی سفارتکار امریکہ کو چھوڑ کر ماسکو کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے روسی سفارتی اہلکاروں کو ملک سے نکالنے کے جواب میں روس نے امریکی سفارتکاروں کو ملک سے نہ نکالنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب دفتر سنبھالنے پر روس سے متعلق پالیسی دیکھ کر ہی حتمی فیصلہ کریں گے۔ نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز۔